Welcome to English grammar class, dear students. So this is our preparatory assignment number 1 for the preparation of unit test 1. So before I begin, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially at public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we are going to revise chapter number 1, the sentence. Let's begin with exercise A. Match the words in the two columns to make meaningful sentences. So यहाँ पे दो columns हैं, दोनों में words given है. दोनों के words को match करके एक meaningful sentence बनाना है. The first one is Kohima. Now what is Kohima? Kohima is the capital of Nagaland. Ostriches. Ostriches are very big birds. अब ये क्या है? Meaningful sentences. Many children are afraid of lightning and thunder. I like going to market because I like watching people. Pens and pencils are available at any stationery shop. People of many tribes live in Manipur and Mizoram. My father likes to wash the car himself. Rabbits love to eat carrots. Kashmiri apples are very tasty. The river Ganga flows into the Bay of Bengal. Moving on to exercise B, mention what kind of sentence each of the following is. Insert the correct and punctuation marks too. So as we know, there are 4 types of sentences: declarative, imperative, interrogative and exclamatory. डेक्लरेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें किसी फैक्ट के बारे में बताया होगा. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड या पीस ऑफ एडवाइस गिवन हो. इंटेरोगेटिव कौन सा होगा? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा हो और उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ होगा और जिसमें कोई सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया हो. सो इनमें से हमें बताना है कि चारों में से ये सेंटेंस कौन सी टाइप का है. ही डिड नॉट गो टू द मार्केट. अब इस सेंटेंस में किसी फैक्ट के बारे में बताया गया है. सो दिस इज़ अ डेक्लरेटिव सेंटेंस और इसकी एंडिंग हम करेंगे एक फुल स्टॉप से. नेक्स्ट इज द कार स्टार्टेड विद अ जर्क. नाउ अगेन दिस इज अ फैक्ट. सो दिस इज अ डेक्लरेटिव सेंटेंस एंड वी विल एंड इट विद अ फुल स्टॉप. How hot the water is. So now this is a sudden emotion or feeling. So this is an exclamatory sentence और इसके end में क्या आएगा? Exclamation mark. Is it a holiday today? This is a question. So this will end with a question mark and this is an interrogative sentence. Please do not pluck flowers. Now this is a request. तो जिसमें रिक्वेस्ट की हो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस और इसके एंड में भी फुल स्टॉप. डोंट टच दैट अम्ब्रेला. नाउ दिस इज़ अ कमांड. कमांड वाले भी क्या होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस और इसके एंड में भी आएगा फुल स्टॉप. आई विल नॉट गो आउट इन द रेन. सो नाउ दिस इज़ अ फैक्ट अबाउट समवन. सो ये क्या है? डेक्लरेटिव सेंटेंस हो गया और इसके एंडिंग में भी फुल स्टॉप. डू नॉट क्लोज द विंडोज. नाउ अगेन दिस इज़ अ कमांड. सो जिसमें कमांड हो वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस और इसके एंड में भी क्या आएगा? फुल स्टॉप. वी शैल एवर विल शी एवर फॉरगिव मी. सो ये है क्वेश्चन. सो क्वेश्चन के एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क और दिस इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यू शुड टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम. नाउ दिस इज़ अ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस. सो दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड वी विल एंड इट विद अ फुल स्टॉप. Stop. This is a short command. So this is also imperative sentence. Shut the door. Again this is a short command. So this is an imperative sentence. So दोनों को हम full stop से ही end करेंगे. Third
Exercise. Rearrange the words to make complete sentences. Remember to use proper punctuation marks and capital letters. So यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड्स गिवन है और उनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. सो इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट होगा जैसे कि इट, द, दिस, डैट, आई, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो होगा उसको हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे. सो वी विल मेक वन सेंटेंस आउट ऑफ इट जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. वेरी टुडे कोल्ड इट इज़. सो स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट से इट, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वेरी कोल्ड टुडे. इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. नाउ दिस इज़ अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ग्रैनी इज़ गोइंग दिस एम वीकेंड आई टू. सो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई के साथ आता है एम और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गोइंग. आई एम गोइंग टू ग्रैनीज दिस वीकेंड. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. एशिया इज़ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट द. सो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ए मैनी रेनबो इन कलर्स हाउ देयर आर. सो हाउ मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा हो. सो हाउ से स्टार्टिंग करेंगे. हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो क्वेश्चन मार्क. इनिंग्स वंडरफुल डैट वाओ ए वॉज. वाओ का मतलब कि ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. सो वाओ को स्टार्ट करेंगे हम और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क. डैट वॉज अ वंडरफुल इनिंग्स. Whom did Taj Mahal build the Shahjahan for? Whom मतलब फिर से ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. सो for whom did Shahjahan build the Taj Mahal? Question mark. Supreme Commander of the Armed Forces, President of India is the. So the President of India is the Supreme Commander of the Armed Forces. Are to you the going evening this fair? आर से स्टार्टिंग मतलब फिर से ये क्या होगा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. सो आर यू गोइंग टू द फेयर दिस इवनिंग क्वेश्चन मार्क. एक्सरसाइज डी. चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. बिगिन ईच सेंटेंस विद द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. सो ब्रैकेट में जो वर्ड है उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग करके इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज लेट अगैन. इसकी स्टार्टिंग करनी है वॉज से. वॉज उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट. वॉज ही लेट अगैन. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने इस तरह से फॉर्म करने हैं. कोई भी यहाँ पे जो भी वर्ब होगी वो लिखेंगे स्टार्टिंग में. वॉज, वर, विल, शैल, इज़, एम, आर, इनमें से कोई भी. और उसके बाद डालेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है ही, शी, इट, दे और एनी नेम. और उसके बाद हम डालेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज़ हाउ वी मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यू वर एट द पार्टी. इसकी स्टार्टिंग आपने करनी है वर से. सो वर डाल के उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट. वर यू एट द पार्टी क्वेश्चन मार्क. शी शाउटेड एट देम. स्टार्टिंग करनी है हु से. हु के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब. हु शाउटेड एट देम क्योंकि हु यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था. हर मदर इज़ एट होम. स्टार्टिंग करनी है इज से. इसके बाद हर मदर इज़ सब्जेक्ट एंड एट होम इज़ ऑब्जेक्ट. इज़ हर मदर एट होम क्वेश्चन मार्क. द वेजिटेबल्स वर फ्रेश. स्टार्टिंग करेंगे वर से. वर उसके बाद सब्जेक्ट द वेजिटेबल्स और फ्रेश आ गया ऑब्जेक्ट. वर द वेजिटेबल्स फ्रेश क्वेश्चन मार्क. ही विल कम टुमारो. विल उसके बाद सब्जेक्ट ही एंड कम टुमारो इज ऑब्जेक्ट. विल ही कम टुमारो. विनोद हैज़ रिटर्न द बुक. इसकी स्टार्टिंग करनी है हैज़ से और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक नेम है विनोद और ऑब्जेक्ट क्या आ गया रिटर्न द बुक. हैज़ विनोद रिटर्न द बुक क्वेश्चन मार्क. द मिल्क इज़ हॉट. स्टार्टिंग करेंगे इज से. इसके बाद सब्जेक्ट आ गया द मिल्क एंड ऑब्जेक्ट आ गया हॉट. इज़ द मिल्क हॉट क्वेश्चन मार्क. नाउ एक्सरसाइज ई. चेंज दीज सेंटेंसेज टू द फॉर्म दैट इज़ मैंशनड इन द ब्रैकेट्स. सो ब्रैकेट में जो फॉर्म मेंशन है उसमें इस सेंटेंस को चेंज करना है. जैसे कि फर्स्ट इज शो मी योर बुक प्लीज़. इसको क्वेश्चन फॉर्म में आपने लिखना है. सो आपने लिख दिया विल यू शो मी योर बुक प्लीज़ क्वेश्चन मार्क. नाउ मूविंग ऑन. भारती इज़
हिज कज़िन, इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। तो इज़ भारती हिज कज़िन क्वेश्चन मार्क। इज़ आ गई फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद भारती आ गया हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिज कज़िन एंड क्वेश्चन मार्क। इज़ द बेबी क्राइंग, नाउ दिस इज़ ऑलरेडी इन क्वेश्चन फॉर्म, इसको आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो जो स्टेटमेंट फॉर्म होगी उसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। द बेबी इज सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया क्राइंग। द बेबी इज़ क्राइंग। देयर मदर इज़ टॉल, इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। तो आपने लिख दिया इज़ देयर मदर टॉल क्वेश्चन मार्क। आर टीचर इज़ ऑलवेज फेयर, इसको भी क्वेश्चन फॉर्म में। इज़ आर टीचर ऑलवेज फेयर क्वेश्चन मार्क। हाउ प्रेटी द ब्राइड लुक्स, नाउ दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसके एंड में एक्सक्लामेशन मार्क है। इसको भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो आपने लिख दिया द ब्राइड लुक्स प्रेटी। व्हाट अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज दैट वाज, अगेन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज। प्लीज़ कम फॉर अ मीटिंग एट 2 o'clock, इसको आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है। सो क्वेश्चन फॉर्म में ये बन गया विल यू प्लीज़ कम फॉर अ मीटिंग एट 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। दिनेश इज़ हैप्पी विथ हिज रिजल्ट्स, इसको आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लिखना है। सो जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग आपने हाउ से करनी है। सो हाउ हैप्पी दिनेश इज़ विथ हिज रिजल्ट्स एक्सक्लामेशन मार्क। द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड, अगेन इसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में फॉर्म करना है। सो फिर से आप हाउ से स्टार्ट कर सकते हो, हाउ फ्राइटेंड द चिल्ड्रन वर एंड एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सरसाइज एफ, री राइट दीज सेंटेंसेज एज नेगेटिव सेंटेंसेज। अब ये सेंटेंसेज हैं इनको हमने नेगेटिव सेंटेंसेज में फॉर्म करना है। सो नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे अगर हैव है तो हैव नॉट में चेंज हो जाएगा, एम विल चेंज इनटू एम नॉट, वॉज विल चेंज इनटू वॉज नॉट, कैन विल चेंज इनटू कैन नॉट, इज़ विल चेंज इनटू इज़ नॉट। सो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है जैसे कि लाइक, पुट, क्लोज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, इनके साथ आपने लगाना है डू नॉट। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट है जैसे कि क्राउडेड, बॉट, वेंट, ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म्स, इनके साथ आप लगाओगे डिड नॉट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्रेजेंट है जैसे गोज, कीप्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप लगाओगे डज नॉट। द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉयज़, यहाँ पे क्या है वॉज, सो वॉज चेंज हो जाएगा वॉज नॉट में। द प्रिंसिपल वॉज नॉट एंग्री विद द बॉयज़। ही कैन स्विम फास्ट, यहाँ पे है कैन, कैन विल चेंज इनटू कैन नॉट, ही कैन नॉट स्विम फास्ट। सो आई लाइक क्राउडेड प्लेसेस, यहाँ पे है लाइक, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो ये डू नॉट में आप इसमें यूज़ करोगे डू नॉट। आई डू नॉट लाइक क्राउडेड प्लेसेस। वी बॉट 2 tickets फॉर द फिल्म, सो बॉट, बॉट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएगा डिड नॉट और बॉट की फर्स्ट फॉर्म बाय। वी डिड नॉट बाय 2 tickets फॉर द फिल्म। माई फादर वेंट टू ऑफिस येस्टरडे, वेंट, वेंट फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे आएगा डिड नॉट और वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो। माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस येस्टरडे। शिवानी इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, नाउ यहाँ पे इज़ है तो इज़ चेंज हो जाएगा इज़ नॉट में। शिवानी इज़ नॉट ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। वी वर श्योर वी वुड विन, सो वर विल चेंज इनटू वर नॉट। वी वर नॉट श्योर वी वुड विन। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, पुट, पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट और पुट की फर्स्ट फॉर्म, पुट की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी पुट ही होती है, सो डू नॉट पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। आई एम श्योर देयर इज समथिंग इन द बॉक्स, एम विल चेंज इनटू एम नॉट। आई एम नॉट श्योर देयर इज समथिंग इन द बॉक्स। शी गोज़ फॉर डांस प्रैक्टिस एवरी डे, गोज़ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, सो यहाँ पे आप यूज़ करोगे डज नॉट और गोज़ की फर्स्ट फॉर्म गो। शी डज नॉट गो फॉर डांस प्रैक्टिस एवरी डे। आई एम हैप्पी, सो एम विल चेंज इनटू एम नॉट। आई एम नॉट हैप्पी। द गेस्ट्स हैव अराइव्ड, have will change into have not, so the guests have not arrived. Close the doors, close is first form of verb और इसके साथ आप लगाओगे do not, do not close the doors.
रेहान कैन रन वेरी फास्ट. सो कैन के साथ कैन चेंज हो जाएगा कैन नॉट के साथ. रेहान कैन नॉट रन वेरी फास्ट. इट इज़ अ हॉलीडे टमोरो. सो इज़ विल चेंज इनटू इज़ नॉट. इट इज़ नॉट अ हॉलीडे टमोरो. सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स. आपने ये चैप्टर नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ऑल द वेरी बेस्ट.